Good evening, everybody. Our own leader, Gopal Shetty, President of Bhavani Foundation, KD Shetty, all the other dignitaries on the dais, off the dais, ladies and gentlemen. First of all, I would like to congratulate KD Shetty and Bhavani Foundation for completion of 10 years. That's one decade, and they have done a wonderful job, as we have seen in the screen. And I give them my best wishes to continue these efforts for another 100 years. I was the president of the Band Sangha in 2016, 17, 18, and I was lucky to have KD as my secretary of the Band Sangha. That time, half my job was done by him only. Today, I am very happy to receive the Karnataka Rajya Utsav Award, but whatever I have done in my life, there are too many people behind me because of whom I have come to this stage. Firstly, it is my family, my parents, my uncle, Advocate Mabul Shetty, my brother Ramanath Payade, who's left us very early, and his unfulfilled work I tried to complete, but I don't know how far I have been successful. Then I had the love and affection of our MP Gopal Shetty, who we stay close by, and so many others. My brother Padmanabh Payade, Mundapanna, all were a part of whatever I did. They were a part of me. Bhavani Foundation is doing a really good job. I've been to their schools, and so many students have come here also. And I also last time said that we would also like to help the school in some way or the other, because as he believes, I also believe, and we in Band Sangh also believe that education is the best form of donation, and through education we can see that the next 5 generations will live happily. So Bhavani Foundation is doing a good job in this field, and I request all of you to see whatever you can do, little help. If everybody can help to children to get educated, it will be very good. I thank KD Shetty and his team for inviting me here today and felicitating me. Thank you all. God bless you. Thank you, Dr. P.V. Shetty. A big round of applause for him, everybody. With this, we move ahead. Next, we would like to felicitate Mr. Dheeraj Shetty, the artist, digital creator. Before we felicitate him, we'd like to share a few words about him. Shri Dheeraj Srinivas Shetty is a dynamic professional, educator and social media influencer. Known for his impactful voice on civic and social issues, he completed his education at SIES College, Nerul, and holds an MBA in marketing and digital marketing. The couple, Srinivas Shetty sir and his wife, is blessed with 2 daughters. Professionally, Dheeraj serves with Reliance Industries Limited and also shares his knowledge as a professor of marketing at SIS Management College and Band Sangha College, where he teaches MBA students across multiple marketing projects. उनका मानना है कि शिक्षा और ज्ञान का प्रसार समाज की प्रगति का सबसे मजबूत आधार है. A creative mind with deep sense of community, Dheeraj gained recognition for creating the first ever Tulu Instagram series, Case Number 100, an 8-episode digital project celebrating Tulu language and culture. उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से कई महत्वपूर्ण नागरिक मुद्दों को उजागर किया है, जिसमें मंगलुरु और उडुपी के सड़कों को और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो प्रमुख सवाल हैं उनका भी समावेश है. His efforts have consistently drawn attention from local authorities, prompting timely action from MPs and MLAs. One of his posts even led to the introduction of LHB coaches in Matsyagandha Express.
a long-standing demand fulfilled within 45 days after the acknowledgement of Shri Kota Srinivas Pujari MP from Udupi. Recognized by political leaders, actors, government officials, Dheeraj Srinivas Shetty continues to use his professional expertise and social influence to drive meaningful changes. आज भी वो समाज में जागरूकता और सकारात्मकता लाने के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। एक बार जोरदार तालियों के साथ श्री धीरज शेट्टी जी का हम अभिनंदन करेंगे। Dheeraj, you have been an inspiration to many. I will kindly request you to address the audience. एक बार धीरज सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए. Come on everybody. नमस्कार। मैं आप सभी को देखकर, आप इतने अच्छे क्राउड है यहाँ पे, इतने बड़े बड़े डिग्निटरीज है, मैं अपना स्पीच भूल चुका हूँ, तो मुझे जो समझ में आ रहा है मैं आपसे कहूँगा। थैंक यू सो मच केडी शेट्टी सर। केडी शेट्टी सर को मैं आज या कल से नहीं जानता हूँ, मतलब मेरे लिए, मैं तो खुद मेरा जन्म नवी मुंबई में हुआ है, तो मैं उन्हें बचपन से देखते आ रहा हूँ। उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ है सुनते आ रहा हूँ, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज़ नहीं, और उन्होंने जो आज एवी में दिखाया है, जो डोनेशन हुआ है, वो शायद 10% होगा जो उन्होंने आज प्रेजेंट किया है। साथ ही एक कहावत है कि जो इस दुनिया में लाती है वो माँ है। उन्होंने अपनी माँ को एक बहुत ही बड़े दर्जे में संवारा है भवानी फाउंडेशन के माध्यम से। और एक दूसरी कहावत ये है कि जो सारी दुनिया को छोड़कर आपके पास आती है वो धर्मपत्नी है। तो सरिता आंटी की भी मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने काफ़ी हद तक उन्हें सपोर्ट किया, और उन्होंने भी ये मेंशन किया। डॉक्टर पीवी शेट्टी सर, इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। गोपाल शेट्टी सर और जितने भी डिग्निटरीज है, मेरे लिए एक बहुत ही मैं काफ़ी बार ऐसे फंक्शन अटेंड करता हूँ, काफ़ी बार ऐसे सम्मानित करते हैं। ये आप सभी का प्रेम है, आप सभी का प्यार है। पर एक चीज़ मैं हमेशा मिस करता हूँ, वो है कि मेरे पिताजी ये सब नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को, जितने भी यंगस्टर्स हैं, उन्हें एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपके जो माता पिता है उन्हें आप रिस्पेक्ट कीजिए, और जितना हो सके आप उन्हें थैंक यू बोलिए, क्योंकि अगर आपको एक एजुकेशन उन्होंने दिया है, जैसे कि पीवी शेट्टी सर ने कहा, एजुकेशन इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट, एंड आई थिंक मेरे माता पिता ने एक गिफ्ट मुझे दिया है, वो एजुकेशन है। और उस एजुकेशन के माध्यम से जो मेरे बारे में उन्होंने कहा कि वो लोकल एमपी हो या एमएलए हो, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो उसी के वजह से पॉसिबल हो पाया, नहीं तो कोई एंटरटेन नहीं करता है। और मेरे लिए मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ है, वो ये प्रूव होता है। मेरे ही गांव से, हम एक ही गांव से बिलोंग करते हैं, मोहन आलवा सर। हमारा एक ही मकसद है, तुलु लैंग्वेज को हमारे स्टेट में रिकॉग्नाइज करना, और वो उस चीज़ के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। मैं भी काफ़ी पुश करता हूँ सोशल मीडिया में। और महाराष्ट्र में रहते हुए हम सारे जितने हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, हमें जितना उन्होंने सपोर्ट किया है, और जिस पैमाने में हमें हमारे भाई जैसे गले लगाकर उन्होंने आज तक हमारा साथ नहीं छोड़ा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड टू ऑल द ऑडियंस, आप लोगों ने भवानी फाउंडेशन और जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से सम्मान किया, थैंक यू सो मच। और मैं इसी के साथ आपको एक छोटा सा, ये मैंने कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं किया है, मुझे काफ़ी लोगों ने, जब मैं आया मुझे उन्होंने पूछा कि आजकल आप रील नहीं बना रहे हो ज़्यादा। मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक कन्नड़ा मूवी कर रहा हूँ विद राजवी शेट्टी के गाइडेंस में।
सो थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए। और काफ़ी लोग कहेंगे शायद कि ये तुलू तुलू करके ये कनाडा में चले जा रहा है, तो मैंने ऑलरेडी एक तुलू मूवी कंप्लीट कर लिया है, तो वो रिलीज़ जनवरी फरवरी में हो जाएगा। आपका प्यार रहे, आपका आशीर्वाद रहे। और अगेन केडी शेट्टी सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड felicitating me. Jikshit Shetty and Shika Shetty, Drashya Shetty, thank you so much for the coordination. मैंने उनसे कहा कि ये मेरे लिए घर का फंक्शन है, आप नहीं भी करोगे, आप नहीं भी बुलाओगे तो मैं आऊँगा। शाम को उनको मैंने कहा कि आपको कोई स्टेज का कुछ अरेंजमेंट करना है तो मुझे बताइए, मैं आ जाता हूँ, कोई ईगो इशू कुछ नहीं है। सो थैंक यू अगेन एंड आपके सभी के पेशेंस के लिए थैंक यू सो मच। To public service. With decades of experience in social and political life, he has consistently worked for the welfare of common people, focusing on the housing, education and civic development. His approachable nature and commitment to community have earned him immense love and respect across Mumbai. It's time to hear from Mr. Gopal Shetty. Let's welcome him with a thunderous round of applause, everybody. Come on. Then? Goregaon. ಊರ್ದಾಗಲೇ ಮಾತಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ತೆಂಕು KD ಸೆಟ್ರ್ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿರು 6ನೇ पात्रಕ್ಕೆ ನೋಡಿನಿ ಇನ್ನು 6th प्रोग्राम। मंच पर उपस्थित भवानी फाउंडेशन के करता धरता संस्थापक जिनको मैं कहूँगा ऐसे KD शेट्टी जी, मोहन अलवा जी, सदाशिव शेट्टी जी, महाबलेश्वर भट्ट जी, के शेट्टी जी, डॉक्टर PV शेट्टी जी, धीरज शेट्टी जी, सुनील सुतार जी, नीलेश मात्रे जी, धर्मपाल देवाड़ीगर जी, नवीन चंद्र सानिल जी, सरिता शेट्टी जी, अन्य सभी प्रतिष्ठित मान्यवर, सभी सत्कार मूर्ति, इस सभागृह में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित मान्यवर भाई और बहनों, मैं वैसे थोड़े समय के लिए आज इस कार्यक्रम में आया था, लेकिन कार्यक्रम का पूरा आयोजन और KD शेट्टी का जो मराठी में जिसको तड़मल कहते हैं, उसको देखने के बाद में मुझे लगा कि मैंने ज़्यादा समय यहाँ पर बैठना चाहिए। और मैंने इस कार्यक्रम का पूरा जो आनंद है वो KD के साथ में हम सभी लोग उसका शेयरिंग पार्टनर्स ऐसा मैं कहूँगा, क्योंकि KD ने एक कर्नाटक में जन्मा हुआ व्यक्ति मुंबई शहर में आकर नाइट स्कूल में पढ़ाई करके इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना ये एक सपने जैसा है, लेकिन उस सपने को साकार करने का काम KD ने अपने जीवन काल में किया। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि उसकी धर्मपत्नी, उनका बेटा, ये सारे लोग उनको साथ और सहयोग देते हैं इस काम में। और किसी भी व्यक्ति ने पैसा कमाना ये तो उसका एक नसीब का भाग होता है, ऐसा मैं मानना है, मेरा हमेशा मानना है, लेकिन समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर देना। और जिस महाराष्ट्र ने, इस मराठी भूमि ने हम जैसे लोगों को बहुत कुछ दिया है, और KD ने अपनी माँ जहाँ पर पैदा हुई थी, जो क्लिप में हमने देखा, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ ना कुछ किया, गांव के लिए किया, समाज के लिए किया। और ख़ास करके इसके महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में भी इंटीरियर पार्ट में जाकर इतना बड़ा काम खड़ा करना, ये मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने बहुत सारे पैसे वाले लोगों को पैसे डोनेशन करते हुए देखा, लेकिन स्वयं अपने आप को उस कार्य में झोंक कर और उसका जो आनंद है उस आनंद को लेना। और जिन 4 बच्चों का यहाँ पर उन्होंने अभी जो सम्मान किया, और सम्मान करते समय अपने घर परिवार का ही है, उसका सम्मान करने का जितना उनको आनंद होना चाहिए वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये बच्चे प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। दिव्या का जो यहाँ पर सम्मान हुआ, ये मेरे परिवार की बच्ची है, और उसको उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बैडमिंटन के क्षेत्र में पूरा ट्रेनिंग का खर्चा उन्होंने उठाना, और फिर बहुत ही कम समय में दिव्या ने भी इतना प्रोग्रेस करना और उनको कर्नाटक से बुलाकर यहाँ पर सम्मान करना, ये मैं मानता हूँ कि एक रचा हुआ कार्यक्रम जैसा KD ने किया है। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। KD को वैसे मैं 20 साल से जानता हूँ। जब डॉक्टर PV शेट्टी जी बंड संघा का अध्यक्ष हुआ करते थे, वो सेक्रेटरी करके उनके साथ में काम करते थे। बंड संघा को भी बहुत आगे लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नवी मुंबई का भी एक नाता मुंबई के साथ में शेट्टी लोगों को नवी मुंबई ने भी एक्सेप्ट किया है। सुनील, मैं कहूँगा मात्रे जी भी यहाँ पर है, और
वैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र का एक नज़दीक का नाता ही है और सारी जो परंपरा है, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ जिसको मैं कहूँगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक का मिलता जुलता ही रहा है। और हमको ऐसा कभी भी लगता नहीं कि हम गांव छोड़कर कहीं अन्य प्रांत में जाके बसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये मुंबई, ये महाराष्ट्र हमारा ही कर्मभूमि है, हमारा ये नेटिव प्लेस जैसा हो गया है। और मैं मानता हूँ कि सारे लोगों ने आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के लिए जितना भी हमसे बन पाए वो करने का प्रयास करना चाहिए। और वो कैसा करना, ये अगर सीखना है तो मैं मानता हूँ कि भवानी फाउंडेशन से सीखना है। और मैं ये सारा परमात्मा का देन ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि केडी के माता का नाम भवानी होना और वो महाराष्ट्र में आके काम करने के बाद में महाराष्ट्र का एक भवानी के साथ में और एक नाता है, और एक नाता है। और मैं मुझे लगता है कि वही सारी ताकत, वो सारी शक्ति आपको वहाँ से ही प्राप्त हो रहा है। और ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। आप सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे हो, आप सिर्फ चैरिटी ही नहीं कर रहे हो, लेकिन आने वाले पीढ़ी को एक नई दिशा आप दे रहे हो कि समाज में किस प्रकार से काम करना है। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। मी मनापासून पुन्हा एकदा केडींचं अभिनंदन करणार, कारण त्यांनी मला दोन्ही भाषेमध्ये बोलण्यासाठी आग्रह केलेला आहे। आणि म्हणून या महाराष्ट्रातल्या नागरिकांचाही मी मनापासून अभिनंदन करू इच्छितो, कारण शेट्टी समाजाला ज्या प्रकारे आपण लोकांनी स्वीकृती देऊन आम्हाला मोठा होण्यासाठी इतक्या या मुंबई शहरामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये संधी दिली। आणि नक्कीच ह्या गोष्टीचा मी त्यांच्या वतीने आणि माझ्या वतीने हे सांगू इच्छितो, जितका काही आमच्याकडनं करता येईल ते आम्ही करू येणाऱ्या काळामध्ये। डॉक्टर पीवींबरोबर पद्मनाभ पयाड जे आहेत, मुंडे पयाड जे आहेत, ह्या सर्व लोकांनी मुंबई शहरासाठी खूप काय केलेलं आहे, आजही करतात, येणाऱ्या काळातही करतील। मैं सभी बच्चों का जिनका यहाँ पर सम्मान हुआ है उनको शुभेच्छा देना चाहूँगा, उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप आगे बढ़िए, आपके साथ में हम सारे लोग हैं। और देश के प्रधानमंत्री जब खेलो इंडिया का कंसेप्ट को इतना आगे बढ़ा रहे, सभी प्रकार की सुविधा दे रहे हैं, खेलो इंडिया के कंसेप्ट के साथ में जो नया उन्होंने 2025 में खेल कूद के लिए जो कानून बनाए हैं, वो सारे आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में जो खेल कूद से जुड़े हुए बच्चों को भी बहुत लाभ होने वाला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर बड़ा नाम करने के लिए आपको एक बहुत सुनहरा अवसर आपके सामने है, ऐसा मैं मानता हूँ। और केडी जैसे लोग अगर जुड़ जाएंगे तो देश और महाराष्ट्र को भी बहुत बड़ा योगदान होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मान्य देवेंद्र फडणवीस जी की बहुत इच्छा थी कि आज के इस कार्यक्रम में वो स्वयं यहाँ पर आए, क्योंकि बनसंगा में तो काफ़ी बार वो आए थे, लेकिन नई मुंबई के सभागृह में भी उनके आने की इच्छा थी, लेकिन कोई अर्जेंट काम के वजह से वो आ नहीं पाए। और मुझे उन्होंने खास करके कहा है कि गोपाल तुम जरूर जाइए इस कार्यक्रम में। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जाकर आज का जो कार्यक्रम का पूरा अहवाल है वो भी उनको मैं सुपुर्द करने वाला हूँ। और उनको मैं कहूँगा कि देखिए शेट्टी लोग भी किस तरह से मुंबई और नई मुंबई में काम करते हैं। मैं सारे ऑडियंस को यहाँ पर केडी शेट्टी और भवानी फाउंडेशन की ओर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि कार्यक्रम में अगर आप लोग अपनी उपस्थिति अगर लगाते नहीं हो, देते नहीं हो, तो फिर कार्यक्रम कितना भी बड़ा हो, कार्यक्रम की ग्रेविटी कितनी भी बड़ी हो, तो जो चार्मनेस, जो ग्रेस उसमें आना चाहिए वो आता नहीं है। आप सब लोगों ने भी आकर आज के कार्यक्रम को सफल किया, इसलिए मैं आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। फिर एक बार मुझे इस कार्यक्रम में केडी ने बहुत याद करके बुलाया, इसलिए मैं पूरे मुंबई शहर के ओर से और शेट्टी परिवार के ओर से आपका धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। थँक्यू सो मच गोपाल शेट्टी जी, आज आप यहाँ पर आए, आज तुम्ही इथे आलात आणि आम्हाला एवढा छान मार्गदर्शन केलं, एवढं छान आमच्याशी गप्पा मारल्या आणि शुभ आशीर्वाद दिले, त्याबद्दल खरंच धन्यवाद. Moving ahead, ladies and gentlemen, our next dignitary is a visionary educationist, philanthropist, Ayurvedic physician, and cultural ambassador, whose life's mission has been to uplift society through education, healthcare, and heritage. As a founder and the chairman of Alvaz Education Foundation, he has transformed Modbidri into a vibrant center of learning, nurturing over 26,000 students across 24 diverse universities and institutions. उनकी संस्थाओं में चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कला, वाणिज्य, विज्ञान और खेल, इन सभी क्षेत्रों में छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान की जाती है. Their students adoption scheme provides free education, food and accommodation to thousands of deserving and talented students. Dr. Alvaz humanitarian initiatives also extend to rural healthcare through Alvaz Health Center and environmental conservation
through Shobhavana, India's largest medical plant garden. वो विशेष रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा दिव्यांग और आदिवासी समुदायों को सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य करते हैं. His passion for Indian art, literature is reflected in iconic cultural festivals like Alva's Virasat and Nodisari, which celebrate the artistic and linguistic heritage of India. कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार सहित अनेक सम्मानों से विभूषित डॉक्टर अल्वा आज भी सेवा, सरलता और दूरदृष्टि के प्रतीक बने हुए हैं. I will request Dr. Alva to please come forward and address the gathering. Can we have a big round of applause for him, everybody? Come on. ತನಗೆ ಇನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ದುಡಿದು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಾಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪದವಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಲಿತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ಕಂಪನಿಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 10 ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ನೀವೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಂಡು ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೇ ಓದಿದಂಥ ಹುಡುಗ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಇರುವುದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಕುಸುಮಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರ ಜೀವನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಇದು ಭಾಳ ಅನೇಕ ಅವರ ಬಂಧುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ತನ್ನ ಒಂದು ಇಡೀ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಷದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಅವರ ಚಿಂತನೆ ನೋಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ದಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಇವತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಗೋರಕ್ಷಣೆಯ ನಮ್ಮ ನೀಲಾವರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗೋರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಇರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಎಂಬವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಅಮ್ಮ, ಅವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಭವಾನಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಇವತ್ತು ಅಂತಹ ತಾಯಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಎಂಬವರು ದೇವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಟಿ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಮಗೊಂದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಅಮ್ಮನವರು ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಜಗದ್ಗುರು ಇವತ್ತು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರು ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾತಾಯಿಯನ್ನು ದೇವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪೂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಿ ಸಲಹಿದ ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ, ಪತ್ನಿ, ಪತಿ, ಬಂಧು ಯಾರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ, ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಹಾತಾಯಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಋಣ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವವಾದ್ದು, ತೀರಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ದು ತಾಯಿ ಋಣ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಮಗನಾದರೂ ಹುಟ್ಟಬಹುದು,
ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಕರುಳಬಳ್ಳಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇವತ್ತು ಮಾತೃತ್ವದ ತಾಯಿತನದ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಮಾತೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಯನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ತಾಯಿ, ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಅಮ್ಮ ಈ 2 ಅಕ್ಷರದ ಪದ, ಆದರೆ ಈ ಪದದ ತೂಕವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ತಾಯಿ ದೇವರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರು ತಾಯಿ ಆಗಲಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾಯಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೇವರಿಲ್ಲ. 100 ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೂ ತಾಯಿಯ ಋಣ ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುಣೆ, ತ್ಯಾಗ ಇವೆಲ್ಲದರ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗಿಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭದ್ರತೆ ಏಕೈಕ ಮೂಲ. ಅಮ್ಮ ಮಾನವತೆಯ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಉದಾಹರಣೆ. ಅಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವನಾಡಿ. ಅಮ್ಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕಲಿಸುವವಳು. ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ವಂಶವಳಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಕುಸುಮಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಂಥ ತಾಯಿಯನ್ನು, ತಂದೆಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರ ಲೋಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ್ದು ಅವರೊಂದು ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಅವರೊಂದು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಹಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಗೊಳಿಸಿದವರೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ. ಆದರೆ ಈ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಮಹಾಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಕೆಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರೋದು ಮಕ್ಕಳೇ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕುಸುಮಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಒಬ್ಬರು. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಒಮ್ಮೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾವ ಕೀಳರಿಮೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಡ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಅವರು 25,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಂತೇಳಿ. ಸರಿ, 25,000 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಲಿಯುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ, CBSE, ICSE 4 ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆವರಣದೊಳಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಮಕ್ಕಳು ಅದರ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ 4 ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇಳೋದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 20,000ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ 150 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಂದೂ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಎಂದೂ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಎಂದೂ ಆತಂಕ ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೈನಾವನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಜಪಾನನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ಜರ್ಮನನ್ನು ತೆಗೀರಿ, ರಷ್ಯಾವನ್ನು ತೆಗೀರಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಭಾಷೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗಳೇ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, 22 ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದಂಥ ಭಾಷೆಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗೆ, ಐಕ್ಯಪವರಿಗೆ ಎಂದೂ ಭಾಷೆ ಅಡ್ಡೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರಿ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಬೇಡಿ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮನೋರಂಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಕುಣಿತೀರಿ, ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇರಲಿ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಮಾನವ ಸಂಪತ್ತು 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಈ ದೇಶ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಂಥ ದೇಶವೂ ಕೂಡ 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಡಿಗ್ರಿವರೆಗೆ ಓದುವಂಥ ಯುವ ಸಂಪತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 52 ಕೋಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ನಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೆ 6.5 ಕೋಟಿ.
ನಮಗಿಂತ 4 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವಂಥ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು 2.5 ಕೋಟಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 144 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಇಂಥ ದೇಶ, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುವ ಸಂಪತ್ತು 52 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿಯವರಾಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಂಥ ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಮೆರೀಬೇಕು. ಈ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ನನಗೆ ಗೌರವವಿದೆ. ಅವರೊಂದು ಆದರ್ಶವಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮೋದಿಯವರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಯಿತು, ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಬಂತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವತ್ತು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರು. ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತು, ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಇವತ್ತು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಾವುದು, ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸವಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಕುಸುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರಂಥ, ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟರಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದುಕೊಂಡು ಅವರವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಜನಗಳು. ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ತಾವುಗಳು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಧಕರು ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಾನು ಕುಸುಮಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟರವರಿಗೂ, ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರಿಗೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಕೆಲಸ, ದೇವರ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಲಿ, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ, ಸನ್ಮಿತ್ರ ಸಹಕಾರ ಒದಗಿ ಬರಲಿ. ನೀವು 100 ಕಾಲ ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರಾಗಿ ನೀವು ಮೆರಿಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Thank you so much, Dr. Alva, for your warm wishes, for your inspiring address. Moving ahead, ladies and gentlemen, we are honored to introduce a remarkable leader, Shri Sadashiv K. Shetty, CMD of Heram Industries Limited and Kemino Pharma Limited, Mumbai. Under his visionary leadership, these organizations have grown into powerful contributors to India's industrial progress. His companies have created extensive employment opportunities, strengthened the agrochemical and pharmaceutical sectors, and set benchmarks in business ethics, innovation, and sustainable growth. उन्होंने हमेशा व्यापार को केवल लाभ का माध्यम नहीं बल्कि समाज को वापस देने का रास्ता माना है. Be it community development, rural upliftment, or supporting culture and social initiatives, his service-oriented leadership has touched countless lives. In recognition of his outstanding contributions, उन्होंने प्रतिष्ठित सुवर्ण कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड प्राप्त किया है and was also honored with an honorary doctorate from Mangalore University, a testament to his influence, integrity and impact over the years. आज वो हमारे बीच उपस्थित है एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जो सिद्ध करता है कि सफलता तब ही पूरी होती है जब वो समाज को ऊपर उठाने में लगाई जाए. एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री सदाशिव के शेट्टी जी का. जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. कम ऑन एवरीबॉडी. Good evening, everyone. Distinguished guests at the podium, at the stage, and of course, first I should address to the President of Bhavani Foundation, Sri
कुसुमाधर केडी शेट्टी जी, अभी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए ये लोग रखा ही नहीं है. Both respected Honorable Gopal Shetty ji and our distinguished speaker, educationist श्री मोहन आडवा जी, दोनों ने इतना सब बोला है फंक्शन के बारे में, केडी शेट्टी साहब के बारे में. अभी मुझे बोलने के लिए कुछ है ही नहीं. ಎನ್ನ ಲಂಚನೆ ಎಂದು ಬಂದು ಬಿಡೋರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಬೇತದಾಲೆ ಪನ್ನೀರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರ. Basically, first of all, I should thank Sri K.D. Shetty ji and his team for inviting me. I am actually unofficial guest here. I am not in the original list. I am add-on guest am I? So, क्या बोलूँ, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन ये लोग ऑलरेडी बोल दिया है. I am very happy to be part of this function, 10th year of celebration of Bhavani Foundation. Jai Bhavani, for Jai Bhavani for your mother, as well as the Jai Bhavani Mataji. 10th year celebration एक बहुत बड़ा लैंडमार्क हो जाता है, and it has been organized and function has been organized so nicely with the due this thing. I tell you that 10th year का हिसाब से बहुत अच्छा आयोजन किया है उन्होंने. Normally I would have spoken in Tudu in this auditorium. It's a Bansanga auditorium. So Tudu बोलेंगे तो कितना लोगों को समझ में आएगा मालूम नहीं है. I think majority are Tudu speaking people here, barring few Maharashtrians also. So I will not speak in Tudu so that you will not understand. Anyway, I am not going to speak much about it. Sri K.D. Shetty साहब, I know for many years. बहुत साल से मैं जानता हूँ, because हम लोग दोनों करीब एक ही गांव के हैं. He is also hailing from a border of Kerala and Karnataka border area. Again, his mother's side, Kutumba, is from our place, very next to my house. So I know him for several years. बहुत साल से मैं जानता हूँ उनको. उनका हिस्ट्री भी करीब हमारे जैसे थोड़ा है, मिलता जुलता चरित्र है हमारा. तो उन्होंने भी एजुकेशन, पार्टली एजुकेशन करके इधर आए. थोड़ा डाइवर्शन ये है कि हमने तो पूरा एजुकेशन गांव में करके इधर आया, वेरएस उन्होंने आधा एजुकेशन गांव में करके बाद में वाइल वर्किंग काम करते उन्होंने नाइट स्कूल में पढ़ के इतना हासिल किया है उन्होंने. सो दूसरा एक कॉमन फैक्टर ये है कि दोनों अपना क्षेत्र में, अलग क्षेत्र में साधना करके वी हैव अचीव्ड समथिंग. एंड बाद में सोशल वर्क जो है उसमें हमारा दोनों का जो मिलता जुलता काम है से थोड़ा मॉडस ऑपरेंडी फ़र्क रहेगा हमारा और उनका. वो खुद का नाम से, खुद का भवानी फाउंडेशन का ज़रिए ये सब कर रहे हैं. तो उन्होंने काफ़ी कुछ किया है भवानी फाउंडेशन में 10 सालों में. सो इसके बारे में पूरा जिक्र हो गया है. इन द प्रेजेंटेशन ऑल्सो यू हैव शोन all the activities that has been carried out by Bhavani Foundation. And बाद में अभी speakers also highlighted about his activities. He is a nice person, I know, and social activities में बहुत सारा काम किया उन्होंने. बनसंगा में भी इन्वॉल्व रहे, और he is also a role model बोल सकता हूँ मैं. मेरे लिए भी एक प्रेरणा है. वो भी इतना सब करके अपना कमाई का एक हिस्सा थोड़ा समाज को भी बांटना चाहिए. ये काम उन्होंने किया है. सो वी हैव समथिंग इन कॉमन. सो आई डू विद मल्टीपल एजेंसीज. सो आई डोंट नो हाउ फार एवरीथिंग ऑल राइट, बट बहुत सारा एजेंसी का थ्रू मैं करता हूँ, क्योंकि हम खुद नहीं कर सकते हैं. एक बार उन्होंने भी मुझे बताया था, सदाशिवಣ್ಣ ಈರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಲ್ ಬಿಚಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಂಡ್ ಐನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರಂತೆ ಬಂಗ ಉಂಡು. ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಲ ತೋಡು
ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಬಾಕಿದ ಹಲವಾರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ಬಟ್ somehow he has been successful in doing it alone through his foundation. हमारा तो अलग अलग फाउंडेशन के ज़रिए हो रहा है. सो उसमें मुझे somehow वो मॉडल थोड़ा अलग अलग मॉडल में काम कर रहे हैं हम लोग, सोशल वर्क. सो बट उनका अच्छा मॉडल रहा, बिकॉज ही इज़ कंट्रोलिंग हिज ऑर्गेनाइजेशन हिमसेल्फ, whereas we depend on others to control us sometimes. So but दोनों पब्लिक का हित के लिए और समाज का जो दीन दलित है, बहुत नीचे लेवल के लोग हैं, तकलीफ़ के लोग हैं, उनके लिए सहायता करना एक फैक्ट. दोनों का ऑब्जेक्टिव तो एक ही है. Objectives are same, but methodology is a little different. So but I appreciate whatever he has done over the years. So as I said, today he has invited me and he gives me a lot of respect, and he is well respected in our entire area as a big donor and doing a lot of activities. We have now jointly working on several things, social activities in our place also. And one more important thing is he is reaching out to the Maharashtra interior areas and helping them. कर्मभूमि जैसा गोपाल साहब ने बताया, अपना कर्मभूमि में भी वो खुद इंटीरियर में जाके गांव में एजुकेशन वगैरह करते हैं. एजुकेशन ऑफ कोर्स, नीडलेस टू से दैट एजुकेशन इज सच ए बेसिक रिक्वायरमेंट एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज़. सो ये बात है. और इधर स्टेज में जो मंच में उपस्थित सभी मान्यवर गण्यवर बहुत बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारा काम किए हैं. मेरे ಆತ್ಮೀಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಕೆ ಕೆ ಶೆಟ್ಟರುಳ್ಳರು, ನಗರದ ಬೈದರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಭಟ್ರುಳ್ಳರು, ಯಾರು ರಷ್ಯಾದ ಬೈದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಬ್ ಐ ನೋ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ he has been honored for his great work by the Karnataka government also. So we have very high dignitaries. ఒక ತುಳುಟು ಮತ್ತು ಅಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತ್ಯರ್ಚಾರಿರು ಅಂಡ್ಲ ಮಲೇಜಿ ತುಳುತು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು, ತುಳು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚನೆ ಇರ್ಲೇಕನೆ ಯಾರ್ಲಂಚಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ. ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಪೋತು ಜಾತಿ ಹಿಮ್ಮತ್ತು ಡೈರಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಂಕ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ಪನಾತ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ದೇವಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್, ಅವರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಿಯನ್ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಲ ಕುಲ್ನಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟ್ರೀಸ್ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ರಾತ್ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜಿನ ನಿಕ್ಲ ಮೂಳೆ ಕುಳ್ನಾಕಲು ಕೆಲವರು ಎ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ ಕುಳ್ನಾಕಲು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು are highly dignified people. So as good as I think president of this Sangha is also here, and lot many of my friends here who are high dignitaries. So it is nice to be part of this celebration of 10th year. So very nice. क्या हो गया, थाली बजाने का भी थक गए तुम लोग? That is the spirit. So you केडी साहब ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया तुम लोग को सबको, हाँ, स्कूल स्टूडेंट्स को सबको. तो बहुत अच्छा लगा सबको मिलके आप लोग को. आगे भी ऐसे ही केडी साहब आगे भी ऐसे ही संस्था चलते रहे. अनदर आई थिंक somebody said 100 years. 100 नहीं है तो भी एक 50 साल तो करो. मैं एक 50 साल का डिस्काउंट देता हूँ. तो 50 साल तो और चलाओ ये संस्था को. ऐसे ही चलाते रहिए. हमारा भी जितना हो सकता है हम भी, हमारा मॉरल सपोर्ट है. हाँ, अभी बेटा चलाएगा, बाद में उसका बेटा चलाएगा. हाँ, उसका बेटा या बेटी जो भी चलाएंगे. तो ऐसे ही चलाते रहो. तो आप एक इंस्पिरेशन है. देखिए केडी साहब एक इंस्पिरेशन है समाज के लिए, हमारे लिए भी. सो वी वर्क टुगेदर. उनसे कुछ सीखा हूँ मैं, और मेरे से क्या उन्होंने सीखा मालूम नहीं है. उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. सो थैंक यू वेरी मच. गोपाल साहब तो हमारे शासक है. हमारे जगह को बहुत सालों से रूल कर रहे हो. आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू योर कॉन्स्टिट्यूएंसी बोरीली कांदिवली. सो उनका भाषण सुना, बहुत अच्छा स्पिरिटेड ये था. और मोहन आलवा जी तो हमारे बहुत ही खास दोस्त है. सच ए बिग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज़ रनिंग. सो भी एक रोल मॉडल है हमारे लिए, कैसा समाज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है. पॉपुलेशन के बारे में उन्होंने कहा
पॉपुलेशन एक समस्या भी है, इतना सारा। ऑस्ट्रेलिया हमारे 4 गुना बड़ा है, वो 2.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसका 1/4 है, लेकिन हमारा पॉपुलेशन 145 144 करोड़। सो दिस इज़ ए प्रॉब्लम ऑल्सो, not only strength but this is a problem also. Anyway, I won't get into all those things. So thank you very much for having me here, KD Anna, and it's my best wishes for your samstha, and Jai Bhavani, both the Bhavanis. Thank you. Thank you so much, sir. With this, we quickly move on to our next guest, ladies and gentlemen. Our next guest is a visionary entrepreneur, philanthropist, and a community leader whose journey reflects remarkable perseverance and purpose. Born in the modest family in Kerala, he rose through the dedication to become a successful chartered accountant and the founder and the managing director of the Helix Group, a global enterprise operating across Russia, Dubai, Kenya, Uganda, and India, employing over 300 professionals. उनकी कहानी एक स्वनिर्मित सफलता की मिसाल है, जहां उन्होंने किराने की दुकान पर काम करते हुए शाम की कॉलेज में पढ़ाई की और आगे चलकर एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय समूह का नेतृत्व किया. Alongside his professional accomplishment, he remains deeply committed to the social service, playing a vital role in uplifting the educational and the cultural landscape of his native region. उन्होंने अपने जनपद में मंदिरों, विद्यालयों और सामुदायिक भवनों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और कई सामाजिक योजनाओं को अपनी उदारता से सशक्त बनाया है. His philanthropic work includes sponsoring major educational infrastructures such as 15,000 square feet Kondevur Ashram School and supporting the reconstruction of the historic Madhur Mahaganpati Temple and Adur Mahaganpati Temple complex. वो चैतन्य विद्यालय, कोंडेवुर, नित्यानंद योगाश्रम तथा कई मंदिर विकास समितियों के प्रमुख प्रेरक बल है और अपनी विनम्रता, नेतृत्व और सेवा से लोगों को प्रेरित करते हैं. Honored with the awards such as Viprabhushan, Gadinanda Ratna and Dakshina Kannada Zilla Rajyotsav Award 2025, he stands as a shining example of how compassion and integrity can shape meaningful success. Ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than Sri Mahabaleshwar Bhatt, Managing Director of Helix Group of Companies. Good evening to everyone. Respected dearest friend Mr. Kusumodar Shetty ji, President of 10th anniversary celebration of Bhavani Foundation, and Sarika ji. Also today's distinguished guests on dais, we have Gopal Shetty ji, Dr. Mohan Halwa ji, Sadash Shetty ji, KK Shetty ji, Matre ji, और टुडे अवार्ड रिसीवर डॉक्टर PV शेट्टी जी, सुनील सुतारे जी और धीरज शेट्टी जी. सो नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीबडी. So today Bhavani Foundation celebrating 10th anniversary. It's a remarkable and memorable milestone. I congratulate Shri KD Shetty ji and his family for successful completion of 10 years of social service. As I know him closely, he has been serving more than 10 years, and 10 years personally he is serving, but 10 years through foundation. Most of people knows Srimati Bhavani Amma was beloved mother of Shri KD Shetty ji. He started the companies in her name. With their blessing, today Bhavani Group become one of the leading logistic companies in India with the business operation many countries. I congratulate again to Bhavani Group for their successful business model. Every business and businessman main motive is to make money, live luxury life, and spend a lot of money. Also, government also expect businessmen should create more and more jobs, pay more and more tax. But when it comes to charity, government tells you can pay only 2% or 1% of your profit as a you can give. But only few business houses like Bhavani Foundation spends major of their profits for a social causes. Bhavani Group doing all these years this job without any expectation.
So this is mainly because the founder, Shri K.D. Shetty ji, come from very humble background. He struggled greatly to achieve what he has today. When the person understands the difficulties in life, they can easily empathize with others' problem. When the person's heart is generous, they extend the helping hand to those really in need. 10 years ago, Bhavani Foundation began with a small but powerful idea rooted in compassion, service, and benefit and belief that every individual can make a difference. There is a famous shloka in our Subhashita, Sanatana Dharma, Paropakaraya phalanti vrikshaha, Paropakaraya vahanti nadiya, Paropakaraya duhanti gava, Paropakaraya idam shariram. Everybody knows this meaning. So trees gives the fruits for others without any expectation. River flow for others. Cows gives milk for others. And the body, which we got it from God, meant for us service to others. I am sure Shri K.D. Shetty ji believes in this and started humble initiative, which has now grown into movement touching countless lives. Bhavani Foundation supports numerous social and charities in the field of education, adapting the schools, providing financial support for the unprivileged children and schools, paying salary for the government school teachers, medical support through organizing medical camps, blood camps, etc., support and reconstruction of a lot of temples, bhajana mandirs, ashramas, and cultural center. Each project and creativity has transformed many lives, aligning with the vision everyone associated with this foundation to serve society. I want to take this moment to congratulate all the members of Bhavani Foundation who have dedicated their time, energy, heart to this noble cause. As a well-wishers of Bhavani Foundation, I am also proud to be part of this in this journey. As we celebrate this milestone, let us reaffirm our commitment to the foundation mission and core values brought us here. Empathy, integrity, community, together we can make a difference. Finally, we should strive to cultivate different kind of wealth. Our ancestors said, Danena tulyam dhanasti nanyat, which means there is no wealth equal to charity. Our belief that wealth created from the charity will be with us forever and fix our place in our next life also. In Bhagavad Gita, Shri Krishna teaches charity. Charity is a sacred duty. In the chapter 17, he explained 3 types of charities. One is a sattvic charity, the charity given with a pure heart at a right time, at a right place to a deserving person and without expecting anything return. This is considered the highest and most noble form of charity. It purifies the mind and brings goodness to the society. Bhavani Foundation doing last 10 years this work. I am again congratulating them. Also, in another type of charity in Bhagavad Gita said, Rajasic charity. This charity given with the expectation for a name, fame, praise, some benefit. Even through this charity, it lacks purity because of it drives for the selfish motive. So we should be away from this kind of charities. The third charity, Krishna tells, tamasic charity. This charity gives to a wrong person at a wrong time or given disrespectfully. So such a charity does not bring any real benefit. So nobody should this kind of charity. So Gita clearly teaches that true charity must come from the sincerity, humanity, and genuine desire to help. Charity is not only just giving money, it also includes giving our time, sharing knowledge, offering help, and spreading kindness. All these forms of charity you can see in Bhavani Foundation. Therefore, let's practice charity with a pure mind, compassionate heart. It helps the society to grow. It also elevates our inner life. Finally, I thank my friend Shri K.D. Shetty ji and his family inviting me to witness this grand vacation. May God bless everyone, good health, prosperity in their life. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Jai Hind.
Thank you so much, sir. With this, we move ahead. And now I'd like to invite the visionary founder and the managing director of Shabri Group of Hospitality, operating as Shabri Industrial Catering Private Limited, a respected name in the industrial catering sector. उन्होंने 1984 में इस संस्था की स्थापना की, जिसमें उनका मुख्य उद्देश्य कंपनियों को उच्च गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करना और अतिथि देवो भवो की भारतीय भावना को साकार करना था. With over 4 decades of experience, he has built an organization known for his quality, consistency, hygiene, and an operational efficiency across Western and Northern India. उनका मानना है कि ग्राहक हमेशा प्रथम स्थान पर होते हैं और उनकी अपेक्षाओं से ज्यादा अधिक सेवा देना ही संस्था की सफलता का मूल मंत्र है. His contributions to his industry and society have earned him several accolades, including prestigious Aryabhatta Awards in 2024. और आज भवानी फाउंडेशन की 10वीं वर्षगांठ पर अतिथि वक्ता के रूप में उनका उद्यमशील सफर और सामाजिक सेवा की भावना हम सभी के लिए प्रेरणादायी है. एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे श्री के शेट्टी, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ शबरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटैलिटी. भवानी ग्रुप का अध्यक्ष मेरा खास दोस्त कुसुमाधर शेट्टी, स्टेज में बैठे हुए सभी का नाम नहीं बोल रहे क्योंकि ऑलरेडी टाइम हुआ है. सभी लोग, सभी मेरा दोस्त लोग हैं और सामने बैठे हुए सभी अतिथिगण. बच्चे लोग बहुत मूड में नहीं है अभी. पहले बहुत जोर से क्लैप ये सब था, अभी क्या ठंडा हो गए. अभी आप लोगों में कुसुमाधर शेट्टी बनने के लिए कितना लोग इच्छुक है वो बताइए पहले मुझे. सही में अभी आप लोगों ने कहानी सुना है केडी शेट्टी साहब का है, कैसा उनका बचपना गया. अभी आप लोग भी वही बचपन में है अभी, लेकिन एक दिन इसमें बहुत लोग केडी शेट्टी बनेगा, जरूर बनेगा. मैं 1 महीने पहले ये बॉम्बे में केडी शेट्टी साहब का एक फंक्शन में गए थे. उनका जीवन चरित्र का एक बुक उस दिन रिलीज किया था. मुझे पढ़ने का कुछ शौक नहीं है. पढ़ने का टाइम मुझे बहुत जल्दी नींद आता है. कोई भी बुक पढ़ने का मुझे अगर नींद नहीं आता है तो मेरा सबसे अच्छा स्वभाव है कुछ बुक पढ़ने के लगेज मुझे नींद आते हैं. लेकिन केडी शेट्टी साहब का जीवन चरित्र वो मुझे पूरा पढ़ना है बोल के मैं जिद पकड़ के पूरा उनका हिस्ट्री पढ़ा है मैंने. रियली बहुत ग्रेट आदमी है. मैं बहुत लोगों को देखा है. मेरा लाइफ में मेरा बिजनेस शुरू करके 42 इयर्स हो गया. बहुत लोगों को मैंने देखा है, लेकिन कुसुमाधर शेट्टी एक अलग आदमी है. सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे, लोगों साथ में जो काम करते हैं उनको भी उनके जैसे बड़ा होना चाहिए बोल के उनका उद्देश्य है. ये सबसे बड़ा उनका एक स्वभाव है बोलिए जो भी है. मैं कुसुमाधर शेट्टी, उनका पूरा ग्रुप, उनका पूरा परिवार, उनको मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जब तक सूर्य चंद्र रहेगा, जब तक भवानी ग्रुप का नाम रहेगा, जैसे आज कैसा भवानी ग्रुप काम कर रहे हैं ऐसे आगे भी उनका कंटिन्यूस एक काम चलते रहेगा. मैं और एक चीज उनका सबसे बड़ा गुण मानता है, मैं
जो लोग माँ बाप को जो इज्जत करता है, अभी आप स्टेज में भी बैठे बहुत लोगों को देख सकते हैं, जो लोगों ने माँ बाप का इज्जत करता है वो दुनिया में सबसे बड़ा आदमी हो रहे अभी तक का। तो ये अप्पम्मन ಏರ್ ಪೂಜೆ ಮಂತದೇರು ಏರ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮೋಕೆ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಲಿ ಲೈಫ್ಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ತೇರಿಂದು ಯಾನ್ ಕಣ್ಣಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂತೂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿನೆಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಈ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಮಸ್ತ್ ಗೌರವವಂತನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿವಂತನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲು ಕಣ್ಣಾರೆ ನಿಕ್ಲು ತೂಂದುಲ್ಲಾರು ಎದುರುಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಳು ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲಪುರ ತೂತಾರು ಅಪ್ಪಮ್ಮರ್ದು ಮಿತ್ತದ ವಾ ದೇವೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನುಂಟು ಏನು तोलू समझते हैं लोगों को। मुझे आज केडी शेट्टी साहब ने इतना बड़ा प्रोग्राम में मुझे एक प्यार से बुलाया। मैं रियली उनको उसको कितना कृतज्ञता बोलना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रियली मैं लाइफ में कभी भूलेगा नहीं है इतना बॉम्बे का जैसा सिटी में, क्योंकि हम लोग अहिल्या नगर, आप लोगों ने सुना होगा अहमदनगर पहले, आज अहिल्या नगर, वो छोटा सिटी से हम लोग आए, मैं आया। मुझे रियली ये बॉम्बे का जैसा सिटी में उसने ये सेकंड बार बुला रहे, ये बॉम्बे के अंदर उनका प्रोग्राम में गेस्ट बोल के मुझे सेकंड बार बुला रहे। मैं लाइफ में कभी केडी शेट्टी साहब आपको मैं कभी भूलेगा नहीं है, ये कभी भी मैं ज़िंदगी में याद रखूँगा। ये ऐसे आगे भी ये ऐसे कार्यक्रम आप करते रहेंगे, अगर आपने बुलाया तो आगे भी हम आते रहेंगे। ये आज का ये प्रोग्राम में आपने बुला के हमको जो रिस्पेक्ट किया उसके लिए आपको और आपका कंपनी का सभी परिवार को धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, एंड विद दिस वी मूव अहेड। मैं अब बुलाना चाहूंगी फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी युवा मोर्चा नवी मुंबई श्री सुनील सुतार जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्ते। प्रथम मी सर्वांना नमस्कार करतो आणि मंचावर बसलेले आमचे भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते लोकसभा मेंबर गोपाल शेट्टी साहेब, या प्रोग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष केडी शेट्टी साहेब, आमचे मित्र म्हात्रे साहेब, पी.व्ही. शेट्टी, के शेट्टी, उपस्थित सर्व मान्यवर, डायसवर बसलेले आणि समोर प्रेक्षामध्ये बसलेले आमचे मित्र राजेश पोलजी, सुनील कुट्टीजी, आमचे मित्र पुरुषोत्तम शेट्टीजी, सत्यावा नायडू, रोनित सुतार, सर्व मान्यवरांचे या ठिकाणी मी मनापासून धन्यवाद देतो की भवानी फाउंडेशनच्या या 10व्या वर्धापन दिन हा नुसता वर्धापन दिन नसून एक आपल्याला बोध घेण्यासारखी गोष्ट आहे की शेट्टी साहेबांची जन्मभूमी मँगलोर कर्नाटक असली तरी त्यांची कर्मभूमी ही महाराष्ट्र मुंबई नवी मुंबई आहे। इथे येऊन नुसता व्यापार नाही त्यांनी केला, इथे येऊन व्यापार करून जनसामान्याची सेवा, गोरगरिबांची सेवा कशी करता येईल त्यांचा भर या गोष्टीवर जास्त असतो। मी मागच्या आठवड्यात त्यांच्या गावी जाऊन आलो, तिकडे मंदिराची निर्मिती होती आणि मी ते सर्व बघून खरंच तुम्हाला सांगतो की शेट्टी साहेबांसारखं व्यक्तिमत्व आपल्याला लाभलं आहे, आपल्या सर्वांचंच भाग्य आहे आणि त्यांच्या दीर्घ आयुष्यासाठी मी देवाकडे प्रार्थना करतो। असेच ते पुढे त्यांचे पूर्ण परिवार, आता बघितलं असं की दीक्षित शेट्टी, त्यांची पत्नी सरिता शेट्टी, त्यांची मुलगी, त्यांची सून, हा संपूर्ण परिवार समाजसेवेसाठी वाहून गेलेला आहे। असे परिवार नवी मुंबईमध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये असणं हा मराठी माणसं आणि महाराष्ट्रासाठी भाग्य आहे। पुढे मी त्यांना एकच त्यांना रिक्वेस्ट करतो की शेट्टी साहेब, अशी तुमची सेवा ही पुढे अशीच पुढे नेऊन ह्या म्हणजे नवीन पिढीला एक मार्गदर्शक म्हणून तुम्ही नेहमीच पुढे याल याची मला खात्री आहे। पुन्हा एकदा तुम्ही मला इथं बोलवलं, मला सन्मान दिला, त्यासाठी मी मनापासून तुमचा धन्यवाद देतो। जय हिंद,
जय महाराष्ट्र, जय श्रीराम. आणि मी आता निलेश म्हात्रेजींना विनंती करेन की त्यांनी 2 शब्दात आपलं मनोगत व्यक्त करावं. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ देत म्हात्रे सरांसाठी. सर्वप्रथम सगळ्यांना नमस्कार. आजच्या भवानी फाउंडेशनच्या 10व्या वर्धापन दिनानिमित्त उपस्थित या राज्याचे माजी खासदार गोपालजी शेट्टी साहेब, या भवानी फाउंडेशनचे अध्यक्ष के.डी. शेट्टीजी, तसेच व्यासपीठावर उपस्थित सगळे मान्यवर व व्यासपीठावरच्या समोर बसलेले सगळे मान्यवरांना माझा नमस्कार. के.डी. शेट्टी साहेबांसाठी काय बोलावं, सगळ्यांनीच बोलून झालेलं आहे. पण एखादा व्यक्ती ह्या महाराष्ट्राच्या कर्मभूमीवर येऊन ते तर करून नुसतं पैसे नाही कमवत, तर ह्या समाजासाठी, इथल्या भूमीसाठी सुद्धा आपलं काहीतरी देणं आहे असं समजून जे काम करत आहे त्याबद्दल खरंच अभिमानास्पद आहे. कारण सगळेजण काम करतात, सगळेजण इथं महाराष्ट्रात येऊन पैसे कमवतात, सगळं कमवतात, पण या महाराष्ट्रासाठी जी देण्याची भावना के.डी. शेट्टींनी सांगितलं आहे त्याबद्दल खरंच धन्यवाद के.डी. शेट्टी साहेब. आणि असंच तुम्ही पुढं काम करत राहा आणि ह्याच शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद म्हात्रे सर. आज तुम्ही वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात. गोपाल शेट्टी सर, थँक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशन. वी आर ट्रूली ऑनर्ड टू हॅव यू ऑल विथ अस. थँक्स अ लॉट. To settle down, the moment we all have been eagerly waiting for is finally here. We are deeply honored. Okay, we'll just wait for a moment. And now, ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for, जिस समय का हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो समय आ चुका है. Ladies and gentlemen, we are deeply honored to welcome the guiding force behind Bhavani Foundation. वो एक दूरदर्शी नेता है, संवेदनशील समाज सेवी और दृढ़ संकल्प वाले उद्यमी हैं, जिनकी सोच ने इस फाउंडेशन की नींव को शक्ति और उद्देश्य प्रदान किया. Under his leadership, the Bhavani Foundation has grown from humble initiative into a powerful moment of service, touching lives through healthcare, education, community development, and unwavering humanitarian support. उनकी करुणा, उनकी प्रतिबद्धता और समाज के प्रति उनका प्रेम, इन्हीं मूल्यों ने इस संस्था को आज उसके 10वें वर्ष पूर्ण करने तक पहुंचाया है. Ladies and gentlemen, with a huge round of applause, अत्यंत सम्मान के साथ हम अब आमंत्रित करेंगे हमारे प्रेसिडेंट सर को, श्री कुसुमोदर डी शेट्टी. एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए. Come on everybody. With a thunderous round of applause, let's welcome him on stage. पहिल्यांदा आपल्या नवी मुंबईतल्या आई गावदेवी त्याचं आठवण करणं महत्त्व असते. आणि इथेच या हॉलच्या बाजूलाच एक एवढं जुने एक बापाचं मंदिर आहे. खरं म्हणू, आज सकाळी मी इथे येण्याच्या अगोदर मी तिथे जाऊन बापांच्या पाय धरून आलो. अतिशय पहिल्यांदा देवांच्या प्रार्थना करून मला जन्म दिलेले माझी आई स्वर्गीय
भवानी आई आणि माझ्या बाबा देरण्णा शेट्टींच ही दोघांना आठवण करून आज आपल्या ही 10वी वर्धापन दिवस आहेत. या संभ्रमासाठी अक्षरशः म्हणजे मला एवढा आनंद वाटते, जे काही महानीयानं मी ते आमंत्रित केलेलं, असं नाही की कोणी इथे नाही आलेलं. आता गोपाल शेट्टी साहेब म्हणाले, आपल्या मुख्यमंत्री साहेब 99% नाही 100% येणार होते. आता ते स्वतः त्यांनी बोललेलं. 2 दिवस पूर्वी मला बोललेला, शेट्टी साहब ये टाइम अनफॉर्चुनेटली फडणवीस साहब नहीं आ सके, अगले साल हम तीनों को यहाँ लेके आएंगे, आप 11वां साल मनाओगे. वो कौन है? फडणवीस साहब, गडकरी साहब और बावंकले साहब को हम यहाँ बुलाएंगे करके. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये कोई बड़प्पन के लिए नहीं है. आज ऐसे वक्त पे हम यहाँ इस मंच पे बैठे हैं. आज इस मंच पे आप लोग देख सकते हैं, महान श्री गोपाल शेट्टी साहब. गोपाल शेट्टी साहब ऐसे एक हस्ती है. आज अगर समझो एक शेट्टी परिवार से एक इतने बड़ी बम्बई शहर की डिप्टी मेयर अगर बना था, वो नन अदर देन गोपाल शेट्टी साहब. उसके बाद वो काजदार बने, वो सब कुछ बाद में की बात है. वैसे मैं भले वो अभी यहाँ से चला गए, उनको याद करते हुए दूसरे मेरे मित्र नहीं कहूँगा, मैं मेरे से थोड़ा सा उम्र में बड़े होंगे, बट मेरे बड़े भाई कहूँगा. आज मैंगलोर से सिर्फ ये फंक्शन अटेंड करने के लिए आए हैं श्री डॉक्टर मोहन आळवा जी. वैसे आज इस मंच पर बहुत अच्छे से सबको हंसाते हुए 4 अच्छा सा शब्द कहे, मगर उनको मैं यहाँ आमंत्रित किया जस्ट 2 दिन पहले. श्री सदाशिव कन्याना श्री डॉक्टर सदाशिव शेट्टी जी. वैसे आज हमारे बेलापुर के आमदार मंदाताई म्हात्रे जी यहाँ आना चाहिए था. ऑल ऑफ सडन ते आजारी पडले, तर सुद्धा तिचं प्रेम बघा. आपल्या मुलांना इथे पाठवून दिले आणि 2 शब्द किती छान शब्द मी बोलले. तर त्याच्या अनुपस्थितीमध्ये मी मंदाताई म्हात्रेंना पण मी इथे आठवण करतोय. तसंच आज हमारे साथ बैठे हैं महाबलेश्वर भट्ट. महाबलेश्वर भट्ट जी वो एक ऐसे हस्ती है, दौलत सब कुछ नहीं है, दौलत सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, बिजनेस सब कुछ नहीं है करके अगर समझना है, हमारे महाबलेश्वर भट्ट जी को देख के हम सीखना चाहिए. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक हफ्ता हम पूरे रशिया मैं भी घूम के आया हूँ बिजनेस के माध्यम से. वहाँ उनका जो साम्राज्य देख के मैं चकित हो चुका हूँ. करीब 25 एकड़ में उनका वेयरहाउसेस है. चाइना से दिन का नहीं बोला तो भी 2000 से 3000 कार्स आ रहे, कैसे? ट्रेन से. चुप हो गया मैं, मगर दिखाते वक्त देखे कितने सभ्य है. वैसे उनके मिसेस मैडम वहाँ बैठी है. तो वैसे इंसान आज माता भवानी के ऊपर के प्यार के ऊपर आज यहाँ आए हैं. सर आपको मैं
हाथ जोड़ के मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वैसे मेरे और एक मित्र अभी कहे, अगर कोई भी बच्चे जरा हाथ उठाओ, कितने लोग केडी शेट्टी बनना चाहिए? बच्चों नहीं, हर एक चीज़ में केडी शेट्टी मत बनो, क्योंकि केडी शेट्टी का एक बहुत बुरी एक आदत है। क्या है वो? गुस्सा। वो मत लेके आओ। और दूसरी बात, अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद, काला है तो काला ही, वो भी आजकल नहीं चल रहा है, बट उस पे भगवान का देन रहते हैं। तो कितने अच्छे उदाहरण दिए मेरे मित्र श्री के शेट्टी जी। आज अहल्यानगर से, अहमदनगर से सुबह 5:30 बजे निकल के यहाँ आए हैं। तो आपको भी मैं इस वक्त पे मैं आपका याद करना चाहता हूँ। वैसे सुनील सुतार जी, सुनील कृष्ण सुतार, अभी थोड़ी देर में अपने मंत्री महोदय गणेश नाइक जी साहब पक्का यहाँ आना ही है, आएंगे अपने बेटे के साथ, संजीव जी नाइक के साथ। वो एक परिवार ऐसा है। आज सुबह जस्ट मैं वॉक कर रहा था, 6:30 बजे मेरे को संजीव नाईक जी का फोन आया, शेट्टी साहेब आपलं कार्यक्रम किती वाजेपर्यंत असणार? तर मी बोललं, साहेब नक्की एक 9 वाजेपर्यंत छाडणार. तर बोलले, आज काय दरबार? कसली दरबार? जनता दरबार. ते पण कुठे? मीरा भाईंदरला जनता दरबार आहेत. तर सुद्धा साहेबांनी बोललेले आम्ही जाऊन यायचेच. काल सुनील सुतार आणि मी दोघांनी आपल्या वाशीला जाऊन साहेबांना भेटले आणि त्यांच्याकडे इवन 2 मिनिटाची वेळ नव्हती, पण ज्या पद्धतीने मला बघितलं, थांबून इवन फोटो, अरे शेट्टी साहेब नक्की येणार, आणि दोघे सेक्रेटरीना म्हणतात लिहून घ्या आणि कसे तरी आम्हाला तिथे जाऊन आपल्या हाजीर लावायचे. हे कोणामुळे? आपले सुनील सुतारमुळे. अक्षरशः म्हणजे सुनील सुतार, मी असा म्हणू की आपले एक संबंध वेगळा आहे. त्यांना काय प्रोटोकॉल नाही आहे इथे. अक्षरशः म्हणजे त्यात माझे मित्र पुरुषोत्तम शेट्टी साहेब आलेले आहेत. आज ते सकाळच्या फ्लाईट घेऊन इथे आलेले आहे. त्यांना पण वरती स्टेजमध्ये बसवायचं होतं, पण नाही, मी त्यांना बोलला तुम्ही तिथेच बसा, आप उधर ही बैठिए, क्योंकि आप प्रोटोकॉल नहीं तोड़ना है. पण सुनील सुतार साहेबांना आज मी इथे बोलवलं, ते पण शेवटच्या क्षणात, का म्हणजे साहेब इथे नाही आहे, ॲटलिस्ट तुम्ही तरी आहेत म्हणून. तसंच माझं अपना भवानी फाउंडेशन हमारे भवानी फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट आज धर्मपाल देवाड़ीगा जी. धर्मपाल देवाड़ी जी के बारे में अगर कर्नाटक में जाएंगे तो उनका नाम कोई नहीं जानता है करके नहीं. अगर अभी इसने जो अपना के शेट्टी जी ने कहा तुलु भाषा, वो तुलु भाषा को कोई लिपि नहीं है. वो तुलु भाषा को अभी अभिवृद्धि करना चाहता है पूरे कर्नाटक गवर्नमेंट. तो वो तुलु भाषा के पूरे भारत में उसको पसारा करने के लिए उसका एक प्रेसिडेंट बन चुके हैं धर्मपाल देवाड़ीगा जी. कई लोगों को पता नहीं. वैसे धर्मपाल देवाड़ीगा जी आज हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट है. उनके बगल में बैठे हैं पंडित नवीन चंद्र सनील जी. मैं क्यों बोल रहा हूँ? पंडित नवीन चंद्र सनील जी दिखने में कितने सोबर आदमी हैं, ये मैं डॉक्टर मोहन आलवाज साहब को बता रहा हूँ. वो ऐसे आदमी हैं, आज करीब 70 के ऊपर मंदिर उनके वास्तुशिल्प से आज हो चुका है, और उसके लिए वो कोई ही डिमांड नहीं है उनके पास. तो वैसे सुनील अपने सनील नवीन चंद्र पंडित नवीन चंद्र सनील है, यहाँ मेरे साथ है. उसके साथ साथ बैठे हैं अभी पीवी शेट्टी साहब. उनके बारे में तो बहुत सारा कहा, उनको भी मैं याद कर रहा हूँ. अपने धीरज, मुझे सही में मुझे पता नहीं था धीरज
इतना आगे चला गया। इतना छोटा बच्चा था तब से मैं धीरज को देखा हूँ। एक दिन मेरी बेटी बोल रही है, शिखा पापा आपको पता है धीरज अन्ना? कौन धीरज अन्ना? अरे पापा आप देखो ना अंकल का, आपको हाँ अंकल तो वो तो गुजर गए, वो तो इतना छोटा। नहीं पापा बहुत आगे चला गया, कर्नाटक में इतना उसका नाम है। और मेरे को उठाते ऑनलाइन सब दिखाने लगा। तो मैं बोला बेटे तो तुम बुला लो ना। आज धीरज यहाँ आए, मैं कभी इनवाइट नहीं किया है। धीरज ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। उसके साथ साथ आज सब लोग ने कहा मैडम सरिता बात सही है, कितना कहा तो भी काम है। अगर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जब भी मैं मेरा सर्विस छोड़ दिया, 31 साल सर्विस कर चुका हूँ, ऐसा हाल मुझे हुआ मैं सोचा भी नहीं था मेरा नौकरी छोड़ने का दिन आएगा, और छोड़ने वाला भी नहीं था क्योंकि मैं एक राजा के हिसाब से था। दान करना पड़ा, दान के रूप में नौकरी छोड़ दिया क्योंकि मेरे खून में भी कभी झूठ बोलना या किसी को फंसाना या किसी के 10 पैसा छीनना वो नहीं है। कहने जाएंगे तो आप लोग के आँख में आंसू आ जाएगी। ऐसे घटना घटी। मैं आके मेरे औरत और किससे बोल सकता हूँ, मम्मी तो छोड़ के चला गई। तो बोला तो उन्होंने बोला कहा आप चिंता मत करो, हमारी 2 बच्चे हैं, इतने बड़े कोई कॉलेज नहीं चाहिए, जस्ट वो लोग को हम लोग एजुकेशन इन द सेंस सिर्फ एक ग्रेजुएट कैसा भी ग्रेजुएशन करके बाकी हम लोग कैसा भी चलाएंगे। उसका वो जो हिम्मत, वो जो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। सो माय वाइफ मिस सरिता शेट्टी आज सामने हमारे इस सच अ ब्यूटीफुल ऑडिटोरियम, Buns Association, owned by Buns Association, ex-presidents. Since almost I could see from 3 o'clock onwards, they are here. NC Shetty ji, Malli Saab, DK Shetty ji, सेक्रेटरी ऐकड़ा जी, सब लोग यहाँ आके बैठे हैं। तो आप लोगों को भी मैं इस तरफ इस वक्त पे मैं आप लोग का मैं याद करना चाहता हूँ। आज एक ऐसे अस्थि यहाँ आके बैठे हैं, डॉक्टर कुट्टी, डॉक्टर सुनील कुट्टी। हम लोग देख रहे हैं वाशी में जो स्टर्लिंग हॉस्पिटल था, आज अभी वो हॉस्पिटल न्यू एरा बन चुका है। न्यू एरा हॉस्पिटल का मालिक है डॉक्टर कुट्टी। आज इंडिया में देखने जाएगा तो न्यूरोलॉजी में वो नंबर 1 है। अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी आके कुट्टी साहब अपने राजेश पॉल साहब को लेके यहाँ आके बैठे। यही है जो हमने, हमारे भवानी ने, हमारे माता भवानी ने, हमारे भवानी ग्रुप ने, हमारे भवानी फाउंडेशन ने पाया है। मैं अभी कहा हमारे पुरुषोत्तम साहब, आज पुरुषोत्तम साहब मेरे पर के प्यार से सुबह के फ्लाइट पकड़ के यहाँ आए हैं। आज पुरुषोत्तम साहब इतने बड़े आदमी हैं, इतने बिजी है, बड़े होंगे, पैसे भी बड़े होंगे, मगर दिल से बड़े नहीं है, दिल से वो बहुत छोटे हैं। आज अगर साउथ इंडिया में ऐसे एक इमारत खड़ा कर रहे हैं, 60 स्टोरीड बिल्डिंग, 60 माले की बिल्डिंग उनकी हो रही है। कहाँ? एकदम समुंदर के किनारे में, मगर कितने सज्जन बन के आके बैठे। अगर मैंने पाया तो यही पाया है। और मैं इतना मैंगलोर से वो आने के बाद भी मैं यहाँ नहीं बिठाया, और वो बैठने वाले भी नहीं, क्योंकि अभी जैसा सुनील साहब ने कहा, गए हफ्ते में सुनील साहब के पूरे परिवार के साथ हम गए थे। वो एक ऐसे एक मंदिर के एक नेतृत्व लिए है। 1800 साल पुराना मंदिर है। आप लोग सुने होंगे नेत्रावती नदी,
नेत्रावती के नदी के तट में है। आज उसका पूरा रिनोवेशन का एक बहुत बड़ा रोल उसको निभाना है। करीब 18 करोड़ का उसका एस्टिमेट है। तो ये सब चीज़ को साइड में रख के पुरुषोत्तम शेट्टी जी यहाँ आए, उनके साथ हमारे किनारे होटल के मालिक आए, हमारे लीलेश शेट्टी जी यहाँ आए और बाकी बहुत सारे हमारे बन संघ के हमारे रीजनल के चेयरमैन, एक्स चेयरमैन संजीवन्ना, हमारे अभी के चेयरमैन भास्कर शेट्टी, बहुत सारे पूरे और हमारे न्यू बॉम्बे बन संघ न्यू बॉम्बे रीजनल के बहुत संख्या में लेडीज़ विंग के आप लोग सब आए हैं। आप लोग को भी मैं इस वक्त पे मैं याद करते हुए लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे अंबरनाथ हमारे स्कूल के बच्चे आज करीब 225 बच्चे के साथ सब लोग मिल के अंबरनाथ से 225 लोग यहाँ आए हैं। किसके लिए आए हैं? ये प्यार है। आता शेवटी तुम्ही आता सर्वांनी इथे पाहिलेला पिरकटवाडी समाज मंदिर एका भाईने तिथे भरपूर बोलली, आम्हाला इथे राहायला जागा नाही आहे, असा नाही आहे, तसा नाही आहे, लग्नासाठी कुठे आम्ही इकडे तिकडे फिरत होते। तेच वाडीमध्ये आम्ही ते समाज भवन बांधलेलं आहे। आज फिरकटवाडीमधनं मला वाटते शेवटच्या तिथे बसे बघा हात वरती करतात, मंगल आणि टीम तुम्ही इथे आलेले आहेत। तुम्हाला पण या मी आता हा वेळेवर तुमच्या पण मी आठवण करतो, मंगल केव्हा पण विसरणार नाही आहे। ही आपल्या प्रेम शाश्वत असणार। उसके साथ साथ आज भी आप लोगों ने देखा कई मीडिया, मैं किसी को बुलाया नहीं है, जितने मीडिया ये हुआ है हमारे भवानी के प्यार और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट दिनेश शेट्टी जी। वैसे ही मैं आज के सुबह से हमें इतना अच्छा हर एक खाने की चीज़ बना के दे रहे हैं अपने सतीश कैटरर्स। वैसे मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी के सक्के बड़े भाई के बेटे, मेरे बड़े भाई यहाँ बैठे, अन्ना संकपन्ना अत्तिगे। आज दृश्य का हमने डांस देखा। दृश्य कोई नहीं है, मेरे बड़े भाई के बेटे की मिसेस है। तो चलड़का से आप आए हैं। वैसे मेरी भांजी, बाकी मेरे मिसेस के परिवार सब लोग को, और एक्जिम से राजन और कुणाल आके, अभी शायद कुणाल जी निकल गए। वैसे DST डेली शिपिंग टाइम्स, हमारे शिपिंग इंडस्ट्री में ये दो पेपर जैसा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस वैसा है, इतना फेमस है। क्रॉस द वर्ल्ड दे आर रीचिंग। सो वो दोनों मीडिया के ओनर्स यहाँ आके बैठे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ क्या है। वैसे मेरे मित्र कोटक बैंक मालिक के साथ उठने बैठने वाले, और आप लोग मानो ना मानो, नक्की मानेंगे मेरे बात, अपने महान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री साहब मोदी जी के साथ बैठेला एक इंसान यहाँ हमारे बाजू में बैठे हैं, नन अदर देन सर वरदराजन अपने बेटे के साथ यहाँ बैठे। तो आप सब लोग को मैं फिर से एक बार याद करते हुए, आज हम लोग बहुत खुशी खुशी से हमारे 10वां साल मनाया। इसके पूरे कारण मैं बोल रहा हूँ, मेरे भवानी परिवार सवेरे 10 बजे यहाँ आके सब लोग पहुँच चुके हैं। और भवानी फाउंडेशन क्या कर रहा है, भवानी शिपिंग क्या कर रहा है, ये बार बार मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि जो भी कर रहे हैं
हमारी ज़िंदगी 4 दिन की ज़िंदगी है। वो 4 दिन में एक दिन जन्म हो गया, एक दिन मौत हो गया, बचा कितना 2 दिन। वो 2 दिन को कैसे काटना है, जो मुझे मेरे नानी, मेरे मम्मी, मेरे नाना, मेरे डैडी जो सिखाया वो मैं सीख लिया। वही आज मैं मेरे 2 बच्चे को भी मैं वही सिखाया हूँ। अभी सब लोग बताया दीक्षित या शिखा। आज proudly I can say the way which both my kids, because after all the parents what they want always they are eager to see their children's how they are. So today myself and Sarita, we are lucky enough to have 2 kids, and similarly today I have a daughter-in-law. I'm lucky, Priyanka, and now hope you all might have seen a smaller one, 2.5 years. So honestly speaking, in these 2 days, ये जो 2 दिन बचा है मेरे लिए, वो 2 दिन में मैं ये सब पाया हूँ। पैसा मुझे कुछ नहीं, आते वक्त लाए नहीं, जाते वक्त लेके नहीं जाएंगे। आज मैं इतना बोल सकता हूँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिल से मैं कह रहा हूँ, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन एक 18-19 साल में इतना पहुँच गया, it's all this credit goes to my own family members of my भवानी। कोई किसी के एक खून पे ये नहीं कि कंपनी को कहाँ धोखा देवे। मैं रिसेंटली एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग ये सुनिए, इतने आसान नहीं है एक कंपनी को आगे ले चलना, और इतने आसान नहीं है। देखिए एनजीओ बहुत सारे लोग स्टार्ट करते, बट उसको लेके चलना बहुत मुश्किल है। एक बार हमारे डेपो नवशेवा में हमारे पास 3 डेपो है, अराउंड 42 एकर्स ऑफ लैंड वी हैव। हम लोग एक्सपर्ट है ये मच्छी, मटन, फिश, मटन, फ्रूट्स जो जा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स बहुत कॉस्टली हो। हमारे यार्ड से केबल चोरी हो रहा था। एक बार गया, 2 बार गया, तीसरे बार मुझे डर लगा। मैं सीधा जाके, आज जो बच्चे ने आज गाना गाया ना पहले, हमारे राजा, मैं उनको जाके डांटा। राजा एक क्यों हुआ है? एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, ये कैसा हुआ? ये नक्की तुम लोग का इस पे हाथ होगा। सब हिल गए, मगर मेरा दिल खटक रहा था, अगर ये झूठा निकला मेरे बच्चों ने क्या सोचेंगे? आखिर में टिटवाड़ा का पापा को मैं सोच लिया। उसके बाद एक रात को आ गए 4 लोग, कार लेके आए, पूरा हथियार लेके आए, 57 कंटेनर से केबल कट लिया। कितना? 57 कंटेनर से, 57 कंटेनर से। और एक लड़का मोनू इसको देख लिया। रात को करीब 2:30 बजे की टाइम थी। अगर दूसरा कोई होता था, अरे आम्हाला मारून टाकणार, त्याच्याकडे एवढा मोठा मोठा कायता आहे, अरे आम्ही नाही, नको जावे, आम्ही बसूया इथे। कोई नहीं बैठा। ये 3-4 लोग मिलके वो चारों को पकड़ लिया। किस हालत में पकड़ा पता नहीं। और मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया, मैं खुद वॉक के लेने गया, गाड़ी लेके मैं चला गया, और इतने में वो चारों को पुलिस स्टेशन में ले गया था। चिरनेर पुलिस स्टेशन गया मैं वो लोग को देखने के लिए। जाके देखा 4 बच्चे, एक लड़का एसएससी का 2nd पेपर दे चुका है, और 3 भी इतने। वहाँ जाके देखा तो मुझे सबसे पहले मेरे बच्चों से मुझे वो लोग का दया आया। ये मम्मी डैडी कैसे सोचे होंगे? तो मैं पुलिस स्टेशन में वो लोग बैठे हैं, पुलिस वाले, मैं उनको पूछा क्यों तुम लोग ये क्या, कशाला तुम हे करता? एक बोल रहे हैं, साहेब मला क्रिकेटमध्ये फार आसक्ती आहे, मला बॅट घ्यायचं होता, मला शू घ्यायचं होता, म्हणून आम्ही हे काम केले। ये हो गया। उसके बाद हाथ पैर जोड़ा, बट मैंने उन लोग को वहाँ कोई शिकायत नहीं किया।
सोचा कि ये लोग और भी ये लोग को कुछ डांट मिलना चाहिए, बट जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ मैं नवीन को बोला, नवीन वो लोग को छोड़ दो, बट आइंदा वो लोग करना नहीं चाहिए। हमेशा मेरे मुंह पे यही आ रहा है, हमारी माता भवानी माता के साथ साथ हमारी माता भारत माता, भारत माता में जो भी है हम बच्चे ऐसे अच्छे बच्चे होने चाहिए। और वो चारों को हमने 2 दिन वहाँ रुका के छोड़ दिया, कोई FIR वगैरह। उसके बाद हमारे ये जो टीम है वो लोग के पास मैं गया, राजा को बुलाया, मनोहर को बुलाया, हाथ जोड़ा, मेरा गलती हुआ। See, this is what my entire team they are following, and the success of the company, it is only because of my family, my these kids. हमेशा वो लोग मुझे एक ही सोचते हैं कि ये हमारे एक पिताजी के समान है, ये हमारे एक अंकल के मामा के समान है। तो ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, आज जो आप लोग देख रहे हैं, इतना सारा समाज के लिए जो चीज़ ये मैं नहीं किया, दीक्षित ने नहीं किया, नवीन ने नहीं किया, आप लोग ने किया। आज आप लोग ने किया, ये देखिए अंबरनाथ से ये आज 200 बच्चे यहाँ आए हैं, और वही 200 बच्चे एक दिन वही अंबरनाथ में हमारा एक ही इरादा है, वहाँ जल्दी से जल्दी हम कॉलेज बना के वहाँ 1000 बच्चों को हम एजुकेशन देवे, ये जल्दी से जल्दी हमारा होवे। और मैं अभी ज़्यादा ना वक्त लेते हुए, पूरे गेस्ट लोग को भी देरी हो रही है, जो भी आप लोग आया है आप लोग को फिर से एक बार मैं हाथ जोड़ते हुए आप लोग को प्रणाम करते हुए, सब मीडिया सबको मैं फिर से एक बार मेरे तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे भवानी ग्रुप के तरफ से आप लोग को वंदन करते हुए मेरे ये 2 शब्द अभी यहाँ ही मी इथेच आता एनीहाव आपल्या वेळ भरपूर आहेत, पण आता मी इथे संपवतोय। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र। थँक्यू।